वॉइस आ रहा है वहां पे? Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Vijay Kumar. And as we have promised, every day we are getting up with such kind of answer writing programs on geography optional, history optional, and within few days we will also start sociology optional. We have started up with general studies answer writing, and also we are having daily newspaper analysis. So this regular program would be helping you in every regard. And in this particular session, we are going to discuss about geography optional answer writing enrichment program, which would be discussed by Vijay Kumar. Clear? If you see, like as in every class, before we start up with the particular question, we would be seeing what are the requirements in the answer, because like answer writing is the end product of your knowledge. मतलब आप जितने भी पढ़ो 10-15 किताब भी पढ़ लो, बट बिना आंसर लिखने में आपका नॉलेज वहां पे पार नहीं होगा. तो आप यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिस इज द ओनली वन टूल थ्रू विच आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं. ठीक है. सो हम जब भी आंसर लिखेंगे हम कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उसमें, स्कीमेटिक्स की टाइप में, केस स्टडीज की कंसिडर करते हुए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर करते हुए, मैप्स के टाइप में, फ्लो चार्ट्स में, एंड अलोंग विद देम वी आल्सो यूज कंटेम्पररी इश्यूज एंड डेवलपमेंट विच वुड बी इन्वॉल्व्ड इन आवर पर्टिकुलर आंसर्स. This we would be generally seeing up. So the question for the day, this is the third question of the series. So daily we will be discussing with one particular question. So in this every day we will be adding a drop to have bucket full of water. Clear? As every day what we would be doing? So we would be reading the question and we would be picking out the particular keywords from that particular aspect. Then we will try to start write the answer. Clear? So this particular question is from physical geography, and from that we have this question from oceanography especially. Clear? Oceanography, many people they would be neglecting that particular oceanography. It is very small in nature. You have to read it. 1 to 2 questions definitely come from oceanography. You should not skip it. Clear? So the question is like, write a short note on oceanic bottom relief of Atlantic Ocean. Also explain why Atlantic Ocean has few islands compared to Pacific Ocean. See, we have division of 2 questions. इसमें हमारे पास 2 पार्ट की क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो हमें दोनों क्वेश्चन को एड्रेस करना है. इसका मतलब पहले हम इसके बारे में लिखना है, ओशनिक बॉटम रिलीफ. जनरली हम जब ओशनिक बॉटम रिलीफ के बारे में जब पढ़ेंगे, वी वुड बी राइटिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ध्यान से सुन लीजिएगा, 5 की पॉइंट्स, चाहे वो भले ओशनिक बॉटम रिलीफ ऑफ एटलांटिक ओशन पूछे या पैसिफिक ओशन पूछे या इंडियन ओशन पूछे, 5 कीवर्ड्स पे हम कोशिश करेंगे कि वो लिखे. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, oceanic basins. Like basins are nothing but we have the deep sea plains जो भी हैं, इसके बारे में like abyssal plains भी बोला जाता है. इससे अलावा अगर कुछ अलग फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिजेस के बारे में लिखेंगे. See, mid oceanic ridges, the most important aspect as we find them in Atlantic Ocean, we find them in Pacific Ocean, we find them in Indian Ocean, but they are best developed in Atlantic Ocean. So any other minor relief features apart from this, जो भी minor relief features होंगे उसके बारे में लिखेंगे. So जब भी this is one of the favorite questions of UPSC. अगर ओशनोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन पूछे, ओशनिक बॉटम रिलीफ के बारे में पूछेंगे, या सैलिनिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस के बारे में पूछेंगे, या ओशनिक करंट्स के बारे में पूछेंगे, या ओशनिक रिसोर्सेस के बारे में पूछेंगे. सो दिस इज फेवरेट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एंड आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते. जनरल स्टडीज जब पढ़ते हैं अब ज्योग्राफी, तो सिर्फ ओशनिक बॉटम रिलीफ क्या क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मिड ओशनिक रिज, ये क्या होता है इतना ही पढ़ना है. बट जब आप ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ओशनिक बॉटम रिलीफ ऑफ एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन इवन समटाइम्स एंड द सदर्न ओशन, तो ये सारे के बारे में आपके पास जरूर एक लिंक होनी चाहिए. दिस इज पॉइंट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन. एंड एक्सप्लेन व्हाई एटलांटिक ओशन हैज फ्यू आइलैंड्स कंपेयर्ड टू पैसिफिक ओशन. दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज. ये क्यों है,
ये पॉइंट भी हमें मेंशन करना है। हम सिर्फ ओशनिक बॉटम रिलीफ में वी आर नॉट गिविंग दिस। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्क ये पॉइंट को मिलेंगे, 5 मार्क ये वाला पॉइंट को मिलेंगे। तो एड्रेसिंग द एंटायर क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो हम इसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। अगर आप ये रगड टोपोग्राफी का पिक्चर देख रहे हो, सो इसमें लाइक एटलांटिक ओशन कहां पे, दिस इज द एटलांटिक ओशन। तो आपको एटलांटिक ओशन में यू आर फाइंडिंग हियर, अगर आप देखें आपको एक एस शेप वाला, यू आर फाइंडिंग एन एस शेप्ड फीचर, राइट। ठीक है, ऐसा भी पैसिफिक ओशन में भी मिलेगा आपको इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, इंडियन ओशन पे भी उसका कंटिन्यूएशन मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी। जनरली ये पिक्चर आपको ड्रॉ करना है जब भी आप एटलांटिक ओशन की बॉटम रिलीफ के बारे में बात करेंगे। दिस पर्टिकुलर पिक्चर इफ यू ड्रॉ, दे विल अंडरस्टैंड, यस दे आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट मिड ओशनिक रिजेस। इसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्लियर। इसके ऊपर अगर आप मैप में जाके देखेंगे, दिस इज मिड ओशनिक रिज और इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज मिड एटलांटिक रिज, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल द मिड ओशनिक रिजेस विच आर बीन प्रेजेंट। तो पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में बात करेंगे, फिर ओशनिक बेसिन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जाके हम मिड ओशनिक रिजेस के बारे में स्पेशल एम्फोसिस देते हुए वी वुड बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर एंड देन वी विल बी एंडिंग द आंसर like why Atlantic Ocean would be having comparatively less islands than Pacific Ocean। आप सबको पता है what are the two types of lavas, हमारे पास acidic lava है and we have basaltic basic lava। so जहां पे भी acidic lava होगा that tends to create huge amount of islands, जहां पे भी basic lava होगा that tends to create very less amount of islands, clear। so आगे हम आंसर में क्या क्या लिखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन के बारे में बात की है, एक रफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना ही होगा, बिना दिए आप अगर आप ये ड्रॉ करके दिखा रहे हो एग्जामिनर को दिस इज व्हाट द रगड टोपोग्राफी ऑफ एटलांटिक ओशन, तो उसमें उसको एक इंप्रेशन आएगा, यस दे नो व्हाट इज ओशनिक बॉटम रिलीफ। तो देर आर चांसेस दैट ही मे नॉट इवन चेक योर क्वेश्चन। इफ यू हैव द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही विल गिव यू गुड स्कोर कंपैरेटिवली। सबसे अगर सब लोगों को एवरेज में 5 मार्क मिल रहे हैं, आपको 7 मार्क मिलेंगे उसमें। ठीक है, सो इसमें अगर आगे जाके देखें तो क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, एज एटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एज एवरीवन नो, पैसिफिक ओशन के बाद। सो उसमें जो एस शेप्ड ओशन इंडिकेट्स दैट लैंड मासेस ऑन ईदर साइड वेयर वंस कंटिजियस पार्ट। जब भी हम जियोमॉर्फोलॉजी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें जिग्सॉ फिट की जिक्र लेके आ रहे थे, एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। सो इन दिस पर्टिकुलर एस शेप्ड फिगर आप देखने से इट विल गिव ए नोशन दैट these land parts, these continents of Europe, Africa, North America and South America, they were part of one individual continent, they were part of one continent earlier, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन में ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस जब भी हम पढ़ रहे थे, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस में वी वेर डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग एंड जहां पे भी स्प्रेड हो रहा है दूसरी जगह पे दैट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, मतलब सबडक्शन जोन में दैट इज मूविंग अंडर। दिस पॉइंट ऑल्सो वी कैन राइट लाइक इट इज एक्सपैंडिंग ओशन, हेंस नो न्यू फोल्ड माउंटेन्स वुड बी फॉर्म्ड एंड इट इज स्प्रेडिंग अंडर रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर्स पर ईयर। अलग अलग ओशंस का अलग अलग रेट हो सकता है, तो वो अलग अलग रेट से दे आर इंक्रीजिंग, क्लियर। इसीलिए यहां पे ज्यादा फोल्ड माउंटेन्स मिलने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट में इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आप लिखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर वेरी वाइड इन दिस रीजन, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वुड बी ब्रॉडर in the regions where we have plains. Continental shelves would be narrower
where we would be having mountain topography at the coastal region. Do remember this point. So continental shelf broader coastal plains की जगह पे, जहां पे भी coastal regions में coastal plains है, उस जगह में broader continental shelves मिलेंगे, and जहां पे भी fold mountain system developed है, in that particular region we would be finding narrower continental shelves. So यहाँ पे as no new fold mountains are created at the coastal affinities of Atlantic Ocean, hence continental shelves would be very much wider. Thus when continental shelves are very much wider, they are excellent zones of fishing. Clear? You can write this point. You are explaining continental shelves that they are wider in Atlantic Ocean, and in that particular regard you are also including the economic point. इसमें आप क्या कर रहे हो? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो दैट दे आर वाइड एनफ बिकॉज नो फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड एट द कोस्टल रीजन. उसकी कंपैरिजन में वी आर ऑल्सो ड्रैगिंग वन मोर पॉइंट दैट दे आर एक्सलेंट फॉर फिशिंग. लाइक अगर आप ग्रैंड बैंक्स देखें न्यू फाउंडलैंड रीजन का, जो कनाडा रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा का कोने पे, यू विल फाइंड दैट न्यू फाउंडलैंड रीजन विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट fishing zone. As Japan is leading producer of the world, along with Japan this Newfoundland region is also known. Yes, certain other, मतलब ये continental shelves wide रहने से भी इसके बाद में भी some other factors are to be considered, like वहां पे जो oceanic current का confluence होगा, clear, that confluence tends to make the domination over there, clear. Along with that अगर आप देखें Dogger's Bank, ठीक है, and great fishing zone of North Sea. These are two important aspects which you have to remember and focus upon. ठीक है? So continental shelves wider है, but apart from this थोड़ा बहुत marginal seas दिखने को मिलेंगे, like Hudson Bay, Baltic Sea and North Sea, which are also an exclusive, extensive part of this Atlantic Ocean itself. You can either include this point or you can eliminate this particular point also. Clear? So very extensive continental shelves are found in South Atlantic, especially between Bahia Blanca and Antarctica. You have to remember these particular keywords. ये याद रखने में, अगर आप जनरल स्टडीज में आंसर लिख रहे हैं तो ये जिक्र करना जरूरी नहीं है, बट जब आप ऑप्शनल के बारे में जब आंसर्स लिखेंगे, you have to focus upon this particular points like बहिया ब्लैंका एंड अंटार्कटिका के बीच में जो भी है, वी वुड बी फाइंडिंग एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. कंपैरेटिवली जब नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक कंपेयर करेंगे, साउथ अटलांटिक हैव वेरी एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. ठीक है, उसके बाद में जब आप मेन बॉडी पे आ जाएंगे, ठीक है, सो इस मेन बॉडी पे जब आप बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशनिक बॉटम रिलीफ फीचर which is present in the Atlantic Ocean, that is mid-oceanic ridge. It is the zone of divergence which extends from island in the north to Bouvet Island in the south. अगर आप उस इमेज में देखेंगे, क्योंकि मैं इमेज में जब दिखा रहा था, आप यहां पे देख लीजिए, ठीक है, राइट अवे इस आइसलैंड के आसपास में ब्यूवेट आइलैंड तक we are having the extension of this particular mid oceanic ridge. इतना ज्यादा एक्सटेंशन है यहां पे, तो इसीलिए हम उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट भी लिखना 100% जरूरी है. ठीक है, सो यहां पे मिड ओशनिक रिज क्यों बन रहा है? वाई मिड ओशनिक रिज इज हैपनिंग? बिकॉज यहां पे जो डाइवर्जेंस है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस फोर्सेस वी आर एक्सपीरियंसिंग मिड ओशनिक रिजेस. आप जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में यू माइट हैव रेड अबाउट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. तो उसमें जहां पे भी डाइवर्जेंट बाउंड्री होगा, वहां से वॉल्केनिक मैग्मा टेंड्स टू कम आउट एंड इट टेंड्स टू क्रिएट मिड ओशनिक रिजेस. क्लियर? एंड दिस मिड ओशनिक रिज का मतलब होता है कि लाइक नैरो चेन ऑफ माउंटेन एक्सटेंडिंग फॉर सर्टेन hundreds of kilometers, they are called as mid oceanic ridges. and Atlantic में जो mid oceanic ridge है, that is the best possible example. अगर आप देखेंगे, it is known as dolphin rays in the north,
ये पॉइंट्स याद रखना ना भूले, 100% ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए लिखिए। एंड चैलेंजर राइज इन द साउथ, अगर आप एटलास में भी देखेंगे आपको डॉल्फिन राइज एंड चैलेंजर राइज मिलेगा। इससे अलावा वाइबल थॉम्सन रिज बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड इज प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ridge south of Greenland and Iceland is known as telegraphic plateau. In the UPPSC exam, they have asked something related with telegraphic plateau. Telegraphic plateau is a part of which of the following oceanic basins? तो कहाँ का टेलीग्राफिक प्लेट्यू, कहाँ का उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं ये बोल रहा था लाइक एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू यू व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, क्लियर। सो ऐसे टेलीग्राफिक प्लेट्यू, विली थॉम्सन रिज बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड, दिस विल गिव a good impression। आपके ऊपर जो अच्छा इंप्रेशन बनेगा that would be absolutely 100% perfect impression, so that to score extra marks in your particular geography as optional, clear। so उससे अलावा अदर ridges है न्यूफाउंडलैंड राइज एंड एजोर्स राइज, ठीक है। and we also have rise at equator, Sierra Leone and Para rise and Guinea rise, Walvis ridge and Rio Grande rise, clear। Pico Island of Azores is the highest peak of the Atlantic Ocean, क्लियर। इन दिस वे ऑल द कंसिडरेशन, सी नॉर्थ से लेके साउथ तक जो भी हम बात कर रहे थे, डॉल्फिन रेस, चैलेंजर रेस, उसमें भी फिर थॉम्सन रिज के बारे में बात कर रहे थे, ये सारे सिस्टम्स के बारे में जब हम बात करेंगे, he will understand that each and every point of that particular oceanic bottom relief has been explained, ठीक है। तो इसके बाद में लाइक along with that we also have some important fractures, ठीक है, लाइक गिब्स, एटलांटिस, ओशनोग्राफी, केन, वेमा एंड रोमांचा, these are important fracture zones. If you can not remember this, you can skip this particular point. And the mid-Atlantic ridge divides the Atlantic Ocean into two major basins, East and West Atlantic basins. Most important basins, Puerto Rico, North America, North Atlantic, Argentina and Walvis basins. वहां पे अगर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट, ये जो मिड ओशनिक रिज है वो ईस्ट एटलांटिक बेसिन एंड वेस्ट एटलांटिक बेसिन को डिवाइड करेंगे। व्हेन इट टेंड्स टू डिवाइड वी वुड बी हैविंग these particular basins which are involved over there. So while discussing with mid oceanic ridges, you discuss with the ridges, fractures and also you discuss with the basins because of which the basins are divided, because of the ridge जो basins divide हुआ है उसके बारे में भी आप बात करना जरूरी है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब हम लिखेंगे वाई पैसिफिक ओशन वुड बी हैविंग ए नंबर ऑफ आइलैंड्स देन अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन जो भी हैं ये दोनों साइड से, चाहे वो भले यूरेशियन प्लेट एंड ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो भी है, वहां पे भी पैसिफिक प्लेट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट के पास में भी पैसिफिक ओशन इज हैविंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। So when we are having this convergent plate boundary, entire आप अगर वेस्टर्न पैसिफिक देखे या ईस्टर्न पैसिफिक देखे, दोनों ही जगह हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगा। So जब हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, हम इसका ये कोशिश करेंगे लाइक वी हैव एक्सपीरियंस्ड द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइलैंड्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में you might have read this particular thing. So as Pacific Ocean comparatively is under convergent plate boundary, hence convergent plate boundary and also hotspot volcanism बहुत ज्यादा है। This is the reason why acidic lavas which are viscous in nature, thus volcanic eruption of this lava forms different islands over there. जो भी आप अटलांटिक ओशन में देखेंगे वहां पे लावा इज नॉट एसिडिक, रादर लावा इज बेसिक। जनरली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मोमेंट जहां पे भी होगा वहां पे वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग बेसिक लावा विच इज फ्लूइडिक इन नेचर। डन। सो इन दिस रिगार्ड यही रीजन है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन में ज्यादा आइलैंड्स बनेंगे कंपैरेटिवली टू अटलांटिक ओशन। क्लियर? So in this way every point of this answer has to be calculated. Clear? So we will come with the next question in the next lecture. Wait until then. Please like this video, share this video and please subscribe to Maluga IAS channel
and please do drop your comments in the comment section so that we can see and we can help you up. What or all are your requirements? You can drop in the comment section. अगर आपको डाउट है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, and you once you subscribe please click on the bell icon as well so that you would be getting continuous notifications. Clear? Thank you for watching this lesson. Have an awesome day. Jai Hind.